अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद याकूब। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीटीआई जलसा इन इस्लामाबाद एक्सपेक्टेड टू बी अ मेजर शो ऑफ सतरंज। तो देखते हैं वीडियो और अपना एंड कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Starting with updates from Pakistan, Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party, the PTI, is holding a mega rally or what it calls a jalsa in Sangjani, an area in the outskirts of Islamabad. Now, the rally holds major significance for former Prime Minister Imran Khan, who just marked 1 year in jail. He is facing multiple charges from corruption to inciting violence. The PTI is attempting a major show of strength here in this rally, with the party's leadership instructing members of the National Assembly, members of the parliament, as well as all ticket holders from nearby constituencies to bring at least 500 workers each. Those from distant constituencies have been instructed to bring at least 150 workers each. The rally has been widely publicized on social media under the name and face of Imran Khan. This is one of the posts which PTI posted. Our country is standing on the crossroads. Another post read, if you want to change the situation, get out. Now, PTI on several occasions had attempted to hold rallies but was denied permission. This time, the administration has granted conditional approval for the rally, specifying that it will run from 4 p.m. to 7 p.m. only. It's under a tight and strict watch. The administration has laid out strict guidelines ahead of the rally. The organizers have been asked to submit a list of attendees to the police. PTI has been asked to ensure there's no disruption of business or public movement. Attendees are not allowed to carry batons, objects of force. No anti-state speeches, no burning of flags allowed during the rally. And any violation of these guidelines, the administration has warned, will result in legal action against the said person as well as the party, PTI. Meanwhile, to stop the PTI workers, all key entry and exit points in the federal capital have been blocked. Containers have been placed on highways to seal access to the city. Metro bus services between Islamabad and Rawalpindi cities have been suspended. Also, WhatsApp, Instagram services are facing major disruptions. We are all excited. This is the first time we are holding a big procession in Islamabad. Inshallah, this will be the biggest in the history of Islamabad. How big do you expect the crowds to be? A lot, the biggest of all time. The biggest of all time. Everyone is saying, and they are actually here just for the release of Imran Khan. And inshallah, What Ta'ala do you will have be to the say with biggest. regards to the containers that have been put up? There are containers everywhere, and wherever they have placed the container, the people are not being stopped by the containers. They have the enthusiasm and they are coming to the place where we are holding this jalsa. And inshallah Ta'ala, all of them would be there. But in every place they have put the container, there is a jalsa itself. All right, here's a report from the PTI rally site in Islamabad. Our Pakistan Bureau Chief Anas Malik sent us this report from Ground Zero. Take a look first. Well, the PTI gathering is currently underway, and they've indeed managed to pull quite some crowd. If a camera person can show you as well, there's all heads that I can see now. Something that was not there initially some hours back. It's been a hot and humid day. Definitely managed to pull numbers, and the crowd seems to get bigger and bigger as the day passes, as the temperatures reduce. They've been asking from the stage to ensure that there are lesser people on the stage. There are convoys and cavalcades that are still incoming. What remains to be seen is the charter of demands that will be presented by the PTI, because remember, this is the first such public gathering in Islamabad since the new government came into power seven months before, and also the first public gathering in Islamabad since the 2022 long march to Islamabad that Imran Khan had did in May 2022. So it remains to be seen what the charter of demands, the key charter of demands, would be laid forward from the Pakistan Tehreek-e-Insaf leadership. Anas Malik in Islamabad, Pakistan, for Beyond World is One. All right, now to get us the latest of what's happening right now in Islamabad, our Pakistan Bureau Chief Anas Malik joins us live from the city. Anas, there's reportedly no network at the rally site where you sent us a report from earlier. Tell us where you're joining us from currently. What's the turnout like? What's the atmosphere like?
Well, I'm currently standing at the Iran Avenue or the Margla Avenue here in Islamabad, which is the designated route for the PTI rally, Shivan. And well, what you see behind me are containers that have been placed. Now there's a lot of police presence around, and what we're anticipating is that there would be people coming in from Khyber Pakhtunkhwa, especially a cavalcade led by the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Khan Gandapur himself. Therefore, we're seeing these anti-terrorist squad, the anti-riot police as well, with their riot gears here at the Iran Avenue, which is the designated route, something that we did not see earlier in the day when we were reporting from here. I'm standing at about 12 kilometers from the main Jalsa Gah, the place where it is where the rally or the gathering is currently underway. There is definitely no mobile network around the area. Mobile data disruptions have already been reported. YouTube is not working in the country without VPN. WhatsApp media you can't send without a virtual private network, and the same goes for Instagram as well. All of these three things you need to access a VPN. You need to have a VPN installed or access it through a virtual private network to be able to access these three networking websites or applications. That being said, the turnout has turned out to be better. Earlier in the day, there was practically no one, given the fact, despite the fact rather, that the space was quite cramped, yet there weren't any people. But a short while back, while you were there and you played that as well for our viewers, now there have been considerable numbers, about 8,000 to 10,000 people have indeed shown up. The crowd seems to get bigger and bigger. Remember, they're supposed to end by 7. That doesn't seem to be the case, at least for now. But what remains to be seen is that what the PTI will propagate from the stage as and when Ali Amin Khan Gandapur and Barrister Gohar get to speak. Shivan? Anas, now earlier there were reports, and we just mentioned it earlier when I was reading through this report, that the participants in the rally they've been told not to carry even batons, nothing of such sort. But reports have surfaced about potential use of ambulances, fire vehicles, heavy disaster response vehicles, cranes, excavators being used in the rally to clear any barriers en route. Now I see some barriers, some these containers which are parked behind you as well, which you just showed us earlier. Is the PTI preparing to barge through these containers or any other barricading, if reports are to be believed? What's the need for such heavy machinery? Well, this is a preemptive measure, at least on the part of the Islamabad admins, because you can't really control a mob or a crowd mentality, and that is the reason the Islamabad administration is not taking any risks in case if there is a violation of the contract or the agreement that the PTI has done with the Islamabad administration, that they will not be marching beyond that Jalsa route or that designated space. That is why these containers have been placed, though what you see behind me is definitely a clear violation of the agreement that the Islamabad admins did, because this very route where I'm standing on the Iran Avenue or the Margla Avenue was given them as a designated route, which was supposed to be clear. Supposed to be. It's not that clear, as you can see behind me. That being said, yes, they have excavators, yes, they have other equipment in order to clear their way up. What the future course of action would be, whether or not there would be any contingencies that would be put into place, the answer to that would be known as and when Barrister Gohar, the current chairperson of the Pakistan Tehreek-e-Insaf, gets to speak, or as and when the Ali Amin Khan Gandapur, the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa, when he gets to speak. Shivan? Anas, you mentioned in your earlier response that the time period which was given between 4 p.m. and 7 p.m. local time, that it doesn't seem like that's going to be adhered to at this point. And given the kind of reports we are getting, it seems like it has all the makings of a highly volatile kind of a gathering. The numbers have increased manifold. Is this the resurgence of the PTI with actual on-ground presence and a show of strength? It can be taken as a resurgence of the Pakistan Tehreek-e-Insaf or as an attempt for a resurgence of the Pakistan Tehreek-e-Insaf for two very reasons. This is the first gathering of the PTI in Islamabad since May 2022, since the last long march that Imran Khan tried to do following his ouster in May 2022. That is number one. And number two, this is the first gathering of the Pakistan Tehreek-e-Insaf in Islamabad itself since the new government came into power. So today marks 7 months, exact 7 months since the elections that were held in Pakistan on the 8th of February, the controversial elections that the Imran Khan-led opposition says that and alleges the government to be quote-unquote mandate thieves. So yes,
this attempt can be seen, or this rally can be seen as an attempt for the resurgence of PTI at a national level or at a federal level. It's too early to say that whether or not it could be considered as a full-blown resurgence. As I said, we remain to see what. चला जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। पहले नंबर तो बात ये है कि भाई वो एक वीडियो देखी थी ट्रू ऑफिशियल की, जिसने बोला था कि भाई पहले से चुतिया बाप को और चुतिया बनाने के लिए इमरान खान जो है वो बहुत जरूरी है, नया पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे थे। हम तो पहले नए पाकिस्तान से बड़ा भाई साहब वो दुखी परेशान है, हमारी तो जिंदगी और जब अजाब बनी हुई ये है। चीज अगर वीडियो देखे ना, ऐसे ऐसे विजुअल आ रहे हैं सामने कि लोग लाखों की तादाद में जा रहे हैं। ये पीटीआई का एक जल्ला इधर भी बैठा है। अच्छा मैं नहीं गया भाई। ये बंदा कोई काम, जिस बंदे के पास कोई काम हो वो जा सकता है। पूरे पाकिस्तान से आवाम में इनके पास काम है ही नहीं है भाई साहब, आप क्यों नहीं काम गए? वैसे भी नहीं है, सारे तजाज लिए अच्छा कल तो तू गायब था, मैंने समझा कि चला गया है। डी चौक के ऊपर आज 15 दिन होने वाले हैं, वो बैठे हैं ताजर, उनसे तो मुदाखलत तो हुए नहीं किसी की, वो ताजरों को कौन लेके गया? उनको भी इमरान खान लेके गया हुआ है, वो किसानों को भी इमरान खान लेके गया हुआ है। मुझे ये पता है जो किसान बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में ताजरों के साथ, वो भी बैठे हुए हैं। वो किसानों को 4-4 लाख वो रुपए क्यों बैठे दे हैं? रही है किसी को भी नहीं मिल किसान कार्ड पर कोई चीज, हमारे किसी गांव को में नहीं मिले हैं भाई। किसी को रात के कुछ भी मैसेज नहीं आए मिल हुए रहा हैं भाई, कुछ भी नहीं मिल रात रहा। के मैसेज आए। अगर वो उधर क्यों गए हुए हैं, वो ताजर वो क्यों बैठे हुए हैं? ताजरों का मुझे पता हम नहीं, लेकिन किसान टीचर और का- डॉक्टर भी निकल रहे हैं। आज या कल देख लेना, तुझे खबर मिल जाएगी, लेकिन- टीचर और डॉक्टर भी मिल रहे। क्यों डॉक्टर क्यों निकलेंगे? कि हमारे पास दवाइयां ही नहीं है। नहीं, दवाइयों का तो कोई दूसरी बात, टीचर इसलिए निकल रहे, हमारे गांव के टीचर भी हैं कि हमारी पेंशन काटी जा रही है। काटनी चाहिए, वो तो काटनी चाहिए। हमारी पेंशन वो तो क्यों सबके काटी जा लिए रही है, है। हमें जवाब दिया जाए। स्कूलों की सारी उम्र होगी, किसी ने नहीं काटी, आज क्यों काट रहे दोनों हैं? सवालों का मैं जवाब क्यों काट रहे हैं मैं आज? जवाब देता जो हूं। मर गए या छोड़ के उनकी पेंशन काटी जा रही वो है। चुप कर अच्छा, स्कूल के हिसाब से जो सारी उम्र चीज तालक- नहीं, वो सब करेंगे तो वो गलत हो मेरा जाएगा। गला भाई चलो, जो रिटायर हो गए उसकी तो ना काटी तालक ना। मेरा गला उसको क्यों खराब काटते है। हैं? इसके दोनों सवालों का मैं जवाब देता हूँ। पंजाब में 66,000 स्कूल है। हमारी जो गवर्नमेंट स्कूलों की पासिंग टाइम 27% है, यानी कि 100 बच्चा 27 पास टीचर पढ़ाते क्या है? बताओ, वो तनख्वाह के लायक ही नहीं है। मैं इसमें गवर्नमेंट की बात तो ना यार करूं। उसको गवर्नमेंट की बात ना रेगुलर करूं। जाते रेगुलर है, क्यों नहीं पढ़ाते भी? तो फिर इसकी देखभाल किसने करनी होती है? गवर्नमेंट ने करनी है। गवर्नमेंट का क्या गवर्नमेंट को कसूर है? तनख्वाह दे गवर्नमेंट रही का है। हक बनता है उसके जान पड़ताल करे, बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, उनका जाके- टेस्ट ले, जाके पढ़ टीचरों के लेंगे। बारे में पूछे। हाँ, पहली मैं बार कहता हूं, ऐसे उस टीचरों बंदे को, को टीचर को पैर फेंक के उसका देख कि हाजिरी में होता है कि नहीं हमारे होता। स्कूल की बच्चे अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? एक उस्ताद को 9 बच्चे आ गए, 10 बच्चे इतने आ गए, 156 की तादाद है, 11 टीचर है। एक टीचर 150 बच्चे को पढ़ा सकता है अगर उसने पढ़ा। बिल्कुल पढ़ा। तो वो नलायकी किसकी? गवर्नमेंट की नलायकी है। गवर्नमेंट की टीचरों गवर्नमेंट की बच्चों नलायकी नहीं दे रही। तो टीचरों को फारग करे ना, पक्का फारग करे। तनख्वाह पेंशन काटने पर तू नहीं गला फाड़ रहा है। पेंशन क्या उनकी फारग काटी करेगा जा रही, तो जो भाई साहब रिटायर फिर ये है। क्या करेंगे? जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन काटी ना जा रही भाई, है। ना। अच्छा जी देखिए, ये जलसा हो रहा है, गवर्नमेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि हक है हर पार्टी का जलसा करने का और पुरअमन जलसा करने का, और इन्होंने पुरअमन किसी ने कमला तक नहीं तोड़ा। क्या हुआ? पिंडी के अंदर से अवाम लड़ाई देखी वीडियो में, कितनी जगह पर लड़ाई हुई है। मैं वो भी सुन, पिंडी के अंदर से जो अवाम जलसा, और क्या जलसा हो रहा था? इस्लामाबाद ग्राउंड पे होना था। इन्होंने कहा वहां इजाजत दे के फिर इन्होंने कहा यू टर्न ले लिया। सेक्रेटरी साहब ने कह दिया कि अब इधर नहीं, मुझे ऑर्डर है कि अब इतना मुआशी मंडी में ज्यादा दोबारा दी गई। जब उधर जलसे गांव में अवाम जाने लगी, इन्होंने इस्लामाबाद पिंडी के अवाम को रोक लिया। अच्छा, पिंडी को वो जो पेशावर से आ रहे थे उनको उधर रोक लिया। अच्छा, रोक जो लाहौर से निकल रहे इधर रोक, मुल्तान से आए थे उनको इधर रोक लिया। जमशेद दस्ती इस्लामाबाद में पहुंचे, उसकी बीवी बच्चों को पकड़ लिया पीछे। अच्छा, हमारा के बीवी बच्चों के लाहौर में उठा लिया। पाकिस्तान की हालत पहले ये जब तो खुद इजाजत देते हैं, फिर उनके बच्चों को उठा लेते हैं। और क्या हुआ? आंट तो गैस से चला दी उनके भाई, ऊपर। जलसे से कितने शहर जो है वो एक दिन की इनकी वजह से, जलसे की वजह से कितने शहरों का रोजगार बंद हुआ है। पहले अच्छा, आदमी का इन्होंने लिख के दिया था कि एक साइड पे हमारे अवाम जाएगी जलसे की तरफ, दूसरा रास्ता हो जाएगा आने जाने के अवाम के लिए, तरीका कार बताया था।
कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज हमारी वजह से बंद हो तो हम जिम्मेदार होंगे, लेकिन दो रास्ते बने, एक रास्ता हमारा होगा, एक उनका होगा, और हम पूरा एहतजाज नहीं, हम जल्द से जाके धरना नहीं देना। एक रात का जलसा है, हमारी जो भी बात हम करके हम अपनी बात रख के चले जाएंगे, वो बात रख के वो चले गए, बेशक अवाम को नहीं जाने दिया। 7 में से 6% अवाम पीछे रुक गई थी, 1% अवाम को जाने दिया है, और उसके ऊपर भी शेलिंग की गई है, उसको भी मारा गया, पीटा गया, औरतों को मारा पीटा गया, बुढ़ों नौजवानों को भी मारा गया, बुजुर्गों को भी मारा गया। क्यों? कोई खिलाफवर्जी ये है कि जलसे में क्यों गए, ये खिलाफवर्जी है बस। क्या राहुल गांधी इंडिया में नहीं जलसे करता रहा? यार छोड़ो यार करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी जिक्र नहीं गए, कन्याकुमारी क्या मोदी ने मारा उनको? क्या मोदी को कहीं के कहा शेलिंग करो? पब्लिक जा तो नहीं है, ये वो ही कह रहा हूँ, वो है जो चले गए पब्लिक तो नहीं पीछे रुकी, जितनी अवाम रुकी ना, सबको जाने देते, क्यों रोका इतना है? शहर में इजाजत इतना दे, है। वो शहर से बैर मंडी, मवेशी मंडी में अब इजाजत दी थी, वो वहाँ पर इतनी जगह है। स्टेडियम में पहले इजाजत दी थी, यू टर्न लेके फिर मवेशी मंडी में भेज दिया। आप क्यों नहीं गए? मुझे अजीब बात है भाई, चलो जाना चाहिए। आपने वैसे जाना, ये इतनी ज्यादती अवाम के साथ करते ये हो। सियासतदान या बेरोजगार, इसीलिए मैं जो गए उमर भाई, उनको तो जाने नहीं दिया गया। गए तो आज है। पता अब लगा। लाहौर में रात को आली अमीन ने ऐलान किया, लाहौर में इंशाल्लाह मैं लाहौर में तुझे नजर आऊंगा। ये बेरोजगार जलसों के लिए पैदा करते हैं कि बेरोजगार रहेंगे। वो जो राहुल गांधी लेके निकला था, जो ट्रंप लेके निकला हुआ है, अभी भी निकला, वो भी बेरोजगार है। जो राहुल गांधी और मोदी के पीछे, वो भी बेरोजगार बेरोजगार है। निकलते हैं, काम वाला बंदा निकल अजीब बात है तेरी भाई, वो काम वाला बंदा ही बात है, वाह भाई, होता वाह। है। दुनिया में रैलियां जो निकलती है अपने लीडरों के पीछे, वो बेरोजगार ही होते हैं। बेरोजगार निकलता है। अपने लीडर के पीछे अवाम निकलती ये है। जो जलसे में जाते हैं, इसमें हाँ। 70-80% बेरोजगार होते हैं। तो फिर उनको नौकरियों काम दो, गवर्नमेंट का क्या काम वो है? इसलिए नहीं कोई नौकरी नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही। इनके जलसों में रश कैसे अच्छा, होना है? मैं इंडस्ट्री वाले 15 दिन से 20 चौक बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? जलसों में ये जो जलसों पे वो इंडस्ट्री वाले को स्कूटी दो, बिजली दो, गैस दो, हर चीज का टैक्स तो लेते हैं, इसलिए वो बैठे हैं। उनके साथ 15 दिनों के मुज़ाकरा तो हो नहीं रहे। चाहे नूनी का जलसा हो, चाहे पीटीआई का जलसा हो, चाहे पीपल पार्टी का जलसा, मेरी एक अपनी जाती राय है, जलसे जुलूस का फायदा नहीं। ये जो हालात इस तरह के होते हैं ना, लीडरों की बात ये होनी चाहिए, नेगोशिएशन करना चाहिए, मुज़ाकरा। अब उसको मुज़ाकरा मुज़ाकरा की भी आधा बात उसने की है। कल कहा नहीं, अच्छा जी, नवाज शरीफ ने एक बात की, वो आम सा बंदा है, वो कुछ भी नहीं आता। वो पार्टी का नवाज शरीफ वजीर आज़म है, उसने कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ जाके ना इमरान खान भी कुछ मुज़ाकरा, नहीं है अब। ना 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 अब ना है कुछ भी ना, लेकिन फिर भी उससे क्यों मुज़ाकरा करते हो? बताओ, फिर भी उससे क्यों नवाज शरीफ का सब कुछ है। नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ भी आदमी की, उससे क्यों मुज़ाकरा भाई करते साहब, हो? यही है, नवाज शरीफ भी है लीड कर रहा इमरान है। खान कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुज़ाकरा तो उससे क्यों करते हो? नवाज शरीफ भी अच्छा, इमरान खान ने तेरी बात का जवाब दे पाकिस्तान का वजीर आजम नून लीग एक- का ही है। इमरान खान ने कहा मैं मुज़ाकरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुज़ाकरा करें, लेकिन वो जो इलेक्शन की चोरी की गई है, अच्छा, मेरी पार्टी खत्म करके, निशान खत्म करके, अलग अलग निशान दे के, फिर भी अवाम ने मुझे जितवाया, अच्छा, अवाम ने जितवाया। वो मेरा मैंडेट जो चोरी किया गया, वो मुझे दो, पहला मेरा ये है, ठीक हो। इसके ऊपर मुझे इसका हल निकाल दो, आगे फिर बातें होंगी। उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे, लेकिन आप बैठ जाए चुप करके, कुछ दिन हमें टाइम दें, उसके बाद हम सोचेंगे, हम आपस में मिलकर बात करेंगे। ऐसी बात ही नहीं हुई। बात ही ऐसी है, नवाज शरीफ का ये कहते हैं इनका मकसद क्या है, कोई जब हमारे खिलाफ बात मीडिया पे ना आए अपने, वो कहते हैं, उन्होंने ये वाजिया कह दिया है, अपनी सोशल मीडिया को बंद करो, उसकी भी सुन ले। नवाज शरीफ सोशल मीडिया को करो, कोई आर्मी के खिलाफ, शहबाज शरीफ पीडीएम के खिलाफ, 2 के खिलाफ बात नहीं होनी अच्छा, चाहिए। बात सुनो उसकी। नवाज शरीफ ने कल इसको वाज़िया लफ्ज़ में बोला है कि मैं इमरान खान साहब से मुज़ाकरा करता हूँ। अच्छा, मैं गला जेल में इनसे मुज़ाकरा करने के लिए, जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक हो गया। वहाँ से फौरन स्टेटमेंट आई कि जो आपके बड़े हैं ना, उनसे मुज़ाकरा होगा, आपसे नहीं होगा। बात लेकिन ठीक है। लीडर को ये जेब नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप गलत ये बात है बोल ही रहे हो। लल्लू सा बंदा यार, है, इसकी औकात ही नहीं, इसकी बेटी इसका अकल निकाल के बैठी है। उसने सारी पार्टी तोड़ दी, इसने सारी पार्टी तोड़ दी, एक मरियम बीबी ने, हुकूमत का एक मरियम बीबी ने सारा कुछ तोड़ दिया है। तो उसको अब क्या मुज़ाकरा, वो ना चेयरमैन है अभी बना हुआ, ना एमएनए है, ना कुछ भी नहीं, पार्टी का सदर कोई नहीं है। नहीं है, वो हार गया। जितनी मर्जी शर्त लगा, मरियम नवाज जीती हो,
शबाज शरीफ जीता हो, नवाज शरीफ जीता हो, खुदा की कसम मुंह मांगी शरत दूंगा तीनों के मुझे जीते हुए एक सीट दिखा दो। चलो वो जीते ही नहीं, एक सीट दिखा दो। नया पंगा। हाँ, ये झूठी खबरें खुदा पाक की कसम उठा के कहता हूँ इनको हारों को जिताया गया है। जीते हुए हैं ना। फार्म 47 जीते हुए, ये फार्म 47 की पैदावार है, जीते हुए करीब। ये 47 की पैदावार हारी हुई बिठाई गई है। इसके इमरान खान हकमाबाद कुछ कह रहा है, इसका जवाब दो जो हुकूमत चला रहे हैं, एक भी जीता हुआ बंदा है बैठ जाए, इसका जवाब दे, ये है तारक, जवाब दे मुझे। इस तरह की उसकी सीट है या नहीं? नहीं है, हारे हुए हैं। अब बैठ। मरियम भी आ रही, जो मरियम का जीता जेल में है। इस तरह की यार इन तीनों को कहो मेरे साथ शर्त लगा ले, जो मरियम के मुकाबले में था, अगर वो मरियम उससे जीती है तो मैं मुंह मांगी शर्त दूंगा। वो बंदा जेल में बैठा जो उससे जीता हुआ है, जो नवाज शरीफ का जीता है उसको भी अगवा कर लिया गया है। वही होता है कि जो बात करो, अच्छा तू जानता है, इनको तो नहीं पता, आपको सच की बात कर, जो मरियम से जीता वो बंदा अब किधर है? जेल में है। जो नवाज शरीफ से जीता वो बंदा किधर जेल है? में। यार क्यों जेल में, इसकी वजह बता सुने, बता दे। हाँ मैं बात आप ये, मान लिया कि इलेक्शन आदमी ने चोरी किया, हो गया, नहीं चोरी नहीं किया, जीत गए, जीत पीटीआई गई थी, उस तो जबरदस्ती बिठाया वो गया। इनको दिया इलेक्शन। क्यों दिया? ये आवाम का हक नहीं मारा गया। बात सुन, इससे आगे बोल। बात सुन। अब जैसे हालात बने, ये तू कह रहा है कि ये डायरेक्टर बड़े से बात करेगा, इमरान खान ने बोला मैं डायरेक्टर बड़े से बात करूंगा। होता ये है कि मुज़ाकराती कमेटियां बनती हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, आर्मी सिर्फ सन का किरदार करती, डायरेक्ट आर्मी इमरान खान से बात, इमरान आर्मी से नहीं, आर्मी खुद डायरेक्ट अपने बंदे भेजती, 3 बार तो हो चुका है। ये कह दिया मुज़ाकरात के लिए ना करो, मुज़ाकरात करो, क्यों नहीं करता? उस रोज के सामने भी सवाल रखे हुए, इन सवालों के अलावा मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। पहले उसको भी यही कहा गया है। एक बात है मुज़ाकरात करने के लिए कि ये जो पहले मैंने बताया, मेरा होगा क्या उखाड़ दिया जल से उखाड़ तो कुछ भी नहीं लिया, कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो फिर पुरअमन करने देते आवाम तो क्यों रोका जाए? इजाजत खुद दे के फिर क्यों रोका जाए? अच्छा राहुल गांधी साहब, राहुल गांधी साहब ने इतनी बड़ी लीड की थी जनता की, क्या उखाड़ दिया था? हार तो फिर भी नहीं गए, जलसे जीत तो होती नहीं गया। मुज़ाकरात का रास्ता निकल होता ना, वो फायदेमंद रहे। यार मुज़ाकरात तो अब भी वो कहते करे, लेकिन उनके कहने पे कंट्री का फायदा होना था। साहब वो मुज़ाकरात अपनी मर्जी के करते हैं। वो कहते हैं अरशद शरीफ के केस के ऊपर आपने बात नहीं की, इस पे तो बात ही नहीं। एक तो आर्मी ने मुद्दा रखा है, अरशद शरीफ का मुद्दा नहीं उठाना। ये इसके जो दूसरी मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं जो आसम मुनीर साहब ने कहा है ना मुज़ाकरात, उसमें सबसे पहली बात ये हुई है आपने अरशद शरीफ की बात नहीं की, ऐसी स्टेटमेंट है। और दूसरी बात, 1 मिनट बाद बात ये जो मीडिया की बात करते हैं, ये मीडिया वाले उस वक्त वहाँ ही होते हैं, तुम्हारे जुतिया वाले मीडिया ना बड़े मीडिया बात करते हैं, आम यूट्यूबर नहीं होते। आम यूट्यूबर उन्होंने ये कहा आर्मी के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलना, ये वाकई होना चाहिए। मैं एक लफ्ज नहीं बोलना। उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो भिगौड़ा बेगैरत भाग के चला गया है, फैसल नसीर अमेरिका में चला गया ना भाग के, हम बीमारी का बहाना बना के नवाज शरीफ की तरह हट्टा कट्टा नौजवान वो भाग के उधर चला गया है। वो क्यों गया उसका जवाब दो। क्या काम है? आज 15 दिन हो गए अमेरिका में, 15 दिन क्या करने गया है? वो क्या काम है उसका? 100 काम होता है, तेरे को बता के वो आर्मी चीफ क्या चला गया? पहले तो हर काम के लिए आर्मी चीफ जाता है, ये जाना जाता है, वो क्यों गया? ऑफिशियल 100 प्रॉब्लम वो यार उसने ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो क्यों चला गया? उसका क्या काम है? सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने लेकिन इमरान 7 बंदे गए उसके साथ, आर्मी के 7 बंदे। भाई अच्छा मुद्दा ये भाई साहब, इस जलसे का कोई फायदा हुआ है? हाँ, क्या फायदा? इस जलसे का ये फायदा हुआ है कि आवाम को जो दिल में इसने PDM 2 ने कहा था कि इमरान खान के लिए कोई एक भी बंदा ख्वाजा आजम का था नहीं निकलेगा। अच्छा फिर अब देखिए वहाँ, अच्छा निकल के फिर क्या होगा? दूसरी बात ये है कि आवाम के दिल में इमरान खान है फौजी या ये सियासतदान नहीं है। अच्छा। आज इलेक्शन करा ले, पहले 19 जीते हैं, एक भी सीट नहीं निकालेंगे, ये फायदा है। अच्छा बहुत फायदा। आवाम के दिल में इनके लिए नफरत के अलावा कुछ भी नहीं। इन सियासतदानों के 14 पार्टियों अच्छा ये तो फायदा हो गया, जो फायदे के नाम है, ये सारे फायदे इमरान खान के हैं। जिस दिन भी इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान को इस आवाम का फायदा होगा, उनकी ताकत जो सदर बनेगा, अच्छा। फिर कंट्री चलेगी आगे। सदर तो ये बनेगा ही नहीं। तेरी औकात है बात करने की, तुम्हारी क्या औकात? तेरी औकात है कि उसको रोक सके? रोका नहीं। तेरी आर्मी चाह के भी उसको फौजी ट्रायल नहीं कर सकती। मैं खुलम खुला कह रहा हूँ अपनी आर्मी, पाक आर्मी को, अगर आप में हिम्मत है, पाक इदारे में इतनी हिम्मत है, ताकत है
ہے شکت ہے عمران خان صاحب کی. رات کو میں نہیں کہہ رہا, رات کو علی مین نے کہا ہے, گور علی خان نے بھی کہا ہے, محمود اجزئی نے بھی کہا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ میں طاقت ہے تو اس کے فوجی ٹرائل کر کے دکھا, چلیں جی علی ٹھیک امین ہے. نے کر کے دکھا دیں. علی امین نے جو رات کو سٹیٹمنٹ دی تھی پتہ تھا؟ اچھا ساری سنی کیا کیا کہا ہے؟ بولا ہے کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں نا بالکل فارغ ہیں, 2-3 ہفتوں میں چاہیے کہ عمران خان باہر آئے. ہاں کیس ایک نہیں تو ہمیں ڈالا جائے, اس پہ قبضہ کر کے اسے خود وہاں سے نکال دیں گے. ریاست کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں مجبور عوام کو نہ کرے, ایک بندہ ہے ہی بے گناہ, اس یہ تو کو بھڑکانے کیس کوئی بھی اب نہیں, دیکھ لو کیسے کوئی کیس بھی نہیں, آپ کیوں بلا وجہ بٹھا کے بیٹھے؟ یہ جی جیل توڑ ایک لیڈر کو آپ تھوڑی سی اس نے کہا بہانے کے لیے لندن بھیج دیتے ہو, شہباز شریف کو باعث گواہ بنا اس کی ذمہ داری ایسی ایکسپلین کر دیتا نا کہ جیسے وہ دل کی بات اس کو بتا کے گیا. نواز شریف کو کیوں بھیجا, بیمار کر جاتے ادھر تو جا کے اس نے پلاٹ میں بھاگنے روڈ میں شروع کر دیا, ادھر تو پیزے اور برگر کھانے شروع ہو گئے تھا. جو رپورٹس تھی یار ووٹ کو چھوڑ, مدے کی بات یہ کہ وہ جو آگ لگانے کی بات کر رہا ہے وہ تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ بات آگ لگانے والی ہے ہی نہیں. جیل توڑ کے جس دن جیل توڑے کوئی بندہ, نواز شریف کو سپریم کورٹ توڑ دیا تھا اندر اور باہر سے, افتخار محمد چودھری کے دور میں توڑ دیا تھا, لیکن کوئی بندہ اڈیالہ جیل کی طرف جائے تو مجھے بتا دینا, کوئی بندہ نہیں جائے. وہ جنہوں نے سپریم کورٹ توڑ دیا وہ کیا تھا؟ تو اس کی بات کو اتنا اجاگر کر رہا ہے جنہوں سپریم کورٹ میں چڑھائی کر دی تھی وہ نہیں نظر آتا, وہ نظر نہیں آتا. جو سپریم کورٹ کو توڑ دیا وہ نظر نہیں آتا. غلط ہے, نہیں غلط کا, آج بھی غلط نہیں کوئی مانتا, غلط ہے, نہیں مانتے وہ. جو اسٹیٹ کے خلاف وہ کہتے ہیں افتخار محمد چودھری غلط تھے, اچھا صحیح ہے, وہ کہتے ہیں وہ جج غلط تھا. یہ عمران خان کو صحیح اسی جج کو امریکہ میں جا کے آج ملتے ہیں. یار ملے نہ ملے مدعا یہ ہے کہ کیا یہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے کہ اس کو جیل توڑ کوئی خلاف نہیں. وہ کہہ رہے خان صاحب کے اوپر کیس یا تو ثابت کر کے سزا دو یا اس کو بری کرو. وہ کیس عام بندے کے 4-4 سال 5-5 سال چل جاتا, خان کو ایسے چھڑا دے. وہ کیس ہو تو چلے نا, کیس ہے ہی کوئی نہیں. پوری دنیا میں کوئی میڈیا میں ثابت کر دو کوئی کیس ایسے چلتے سالوں کوئی کیس. وہ گھڑی والا کیس تھا سب سے پہلے تو وہ ختم ہوا ہے بھائی صاحب, سب سے پہلے تو وہ ختم ہوا ہے. اس خان صاحب کو کوئی ثابت تو کرو. 200 کے اوپر کیس ماما ایک بھی ثابت نہیں کر سکے. اتنا کیس اتنی ڈال دے تو لمبی ترین ڈال دو مہینے کی پتہ چلتا ہے. کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے کیا تھا نا دعا, یار جو غلط تھا وہ بھی غلط تھا, لیکن یہ جو اسٹیٹ کو خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے یہ نہیں ہے. یہ ہے نہ, میں میری بات سننا یوسف بھائی, میں نون لیگ کے ساتھ نہ پیپل پارٹی نہ پی ٹی آئی کے ساتھ, نہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. جو ہے نا اسٹیٹ ریاست, چاہے پیپل پارٹی چاہے نون لیگ چاہے پی ٹی آئی, جو بھی ان کے خلاف ہٹ کرتا ہے نا وہ ملک کا وفادار کوئی بھی یہ بس اتنی فکری ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, میں ضرور ہے کہ گورنمنٹ میں یہ بھائی اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جاتا ہے یہ صحیح ہے, ان کی دوسروں کی غلطیاں گنانا شروع کر دیں وہ بھی غلط ہے. عمران خان صاحب آئیں گے اور بنیں گے وزیر اعظم, بنیں گے بھی آپ کے, تو چلو ٹھیک ہے بھائی, روکنے والی ضرورت تیری آرمی میں بھی نہیں بھائی صاحب 3 سال میں. اور خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں, میں 100 بار کہہ چکا ہوں, آرمی باؤنڈری پہ ہوگی, جمہوریت میں نہیں ہوگی. میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک بار میں 100 بار کہہ چکا ہوں, یہ باؤنڈری پہ ہوں گے, یہ کبھی بھی نہیں آپ جمہوریت میں ہوں گے. یہ کل جلسے میں تھا ساری رات ادھر, میں سنتا رہا ہوں, ساری رات میں چلتا دیکھتا ہوں. یہ وہ جو ہے نا وہ جو جو ہے نا وہ جو گئے ان کو تو جانے نہیں دیا, چلو گئے تھے لاکھوں کی تعداد ان کو تو روک دیا, تیرے جیسے نے روکا. وہ بتا تو پھلان کے لگا تو وہ پھلان کی طرح کنٹینر گرا کے گئے, کنٹینر زمین پہ گرا کے وہ گئے. اتنی ہمت ہوتی ہے تو جانے کی اجازت ہوتی, اسٹیڈیم میں جانے دیتے نہ کنٹینر لگاتے. اجازت کی ضرورت خود اجازت دی ہے, پھر یو ٹرن لے لیا گورنمنٹ نے, ذلیل گورنمنٹ نے. چلیں جی ٹھیک ہے, میں اپنی رائے ضرور بتائے گا گورنمنٹ تک میں ملتے رہیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.